isn't it? So for example, मेरे पास कोई रिएक्शन है x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b is a reversible reaction. It's a reversible reaction. 1 minute. It's a reversible reaction and it gives me m times c plus n times d. So ये मेरे पास reversible reaction है. और ये जो मेरा x है, y है, m है, n है. These are called stoichiometric coefficients. This x and y, they are called stoichiometric coefficients. तो ये जो हमारे पास x, y हैं, they are called stoichiometric coefficients. This x, this y, this m, this n, they are called stoichiometric coefficients. इनको हम stoichiometric coefficients कहते हैं. So we know that this is a forward reaction, isn't it? And this is a backward reaction. This is backward reaction. तो अगर मैं rate of forward लिखूंगा, rate of forward reaction लिखूंगा, तो what will be rate of forward reaction? Rate of forward reaction. Rate of forward reaction किसके बराबर होगा? Rate of forward reaction अगर यहाँ पे लिखूंगा, that will be directly proportional to the concentration of A and B raised to the power their stoichiometry. That is concentration of A raised to power its stoichiometry, that's x, into concentration of B raised to power its stoichiometry, that is y, isn't it? तो अगर हमें proportionality को खत्म करना है, how can we write it? Proportionality को अगर खत्म करना है तो हम लिखेंगे rate of forward reaction is equal to, we will introduce some constant, that's k. Since this is a forward reaction, therefore we'll write kf into concentration of A raised to power x into concentration of B raised to power y. Similarly, अगर मुझे लिखना होगा rate of backward reaction, अगर मुझे लिखना होगा rate of backward reaction, तो कैसे लिखेंगे? It will be directly proportional to concentration of product. So concentration of product, that's concentration of C raised to power its stoichiometry into concentration of D raised to power its stoichiometry. अगर इस proportionality को खत्म करेंगे, therefore we can write it is equal to Kb, that's rate constant for backward reaction, into concentration of C raised to power m into concentration of D raised to power m. Isn't it? यहाँ तक बात clear? Rate of forward reaction मैंने लिखा, from kinetics rate is equal to concentration of reactants raised to power their stoichiometry, isn't it? Rate is equal to concentration raised to power their stoichiometry. Concentration of reactants raised to power their stoichiometry. यहाँ तक बात clear? I hope यहाँ तक बात clear है, isn't it? So we know that at equilibrium, since this process is at equilibrium, so at equilibrium, what will happen? We know that rate constant for forward reaction becomes equal to rate of reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Sorry, rate of forward reaction ROF is equal to ROB. तो इसको हम कहेंगे ROF rate of forward reaction, इसको कहेंगे ROB rate of backward reaction. So what is rate of forward reaction? Rate of forward reaction is Kf into concentration of A raised to power x into concentration of B raised to power y. It's equal to Kb rate of backward reaction into concentration of C raised to power m into concentration of D raised to power n. Isn't it? Isn't it? यहाँ तक clear है? At equilibrium, rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, isn't it? तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि at equilibrium rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. हाँ, तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो कि F डिवाइड बाई KB, कि F डिवाइड बाई KB किसके बराबर आएगा? कि F डिवाइड बाई KB किसके बराबर आएगा? क्या हुआ स्लाइड को? कि F डिवाइड बाई KB किसके बराबर है? तो मैंने एक्चुअली इस Kb को यहाँ लाया, Kb को यहाँ लाया, मतलब इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री into concentration of D raised to power its stoichiometry divided by concentration of A raised to power its stoichiometry into concentration of B raised to power its stoichiometry. और ये जो हमारे पास रेशियो ऑफ Kf by Kb है, इसी को हम रेट कांस्टेंट Kc लिखते हैं, इसी को हम सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं, नॉट रेट कांस्टेंट, इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं.
सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्या आप यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो? ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट इज दिस? सी इन द ब्रैकेट, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सी, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ डी। सी और डी क्या है? प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by product of concentration of reactants raised to power their stoichiometry. This is A raised to power x and B raised to power y. Raised to their power, raised to their power of stoichiometry, isn't it? So equilibrium constant according to law of mass action is defined as the product of concentration of products divided by product of concentration of reactants raised to power their stoichiometry. बोलो क्लियर हुआ क्या होता है Kc? Kc किसके बराबर होता है? व्हाट इज Kc? Kc किसके बराबर होता है? K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड। ये आपके पास एक रिलेशन आती है, Kc इज इक्वल टू K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड। अभी मैं Kp की बात नहीं करता हूँ, Kc इज इक्वल टू K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, this Kc is defined as the product of concentration of products divided by product of concentration of reactants raised to power their stoichiometry. So you can see over here we have a product of concentration of products. So C and D are products raised to power their stoichiometry M and N. A and B are reactants raised to power their stoichiometry X and Y. Isn't it? So ये हमारा होता है law of mass action. इस statement को आप लिख सकते हो। I hope कि ये statement आप लिख सकते हो। ये सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इट्स द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इजंट इट? बता मुझे, ये बात क्लियर हुई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा। क्लियर हुई? बता सब बच्चे, बोलो ये क्लियर हुआ आपको? इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यू कैन नाउ स्टेट इट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द product of concentration of products, C and D are products, inca product divided by product of concentration of reactants, K and B are reactant, inca product raised to power their stoichiometry, isn't it? हाँ, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। we will see on what factors equilibrium constant will depend and on what factors it is independent of. तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज टू इम्पोर्टेंट। ये हमें याद रहेगी आज, ये इक्वेशन तो हमें याद रहेगी बिकॉज हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे निकालने। तो बस किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। एक एग्जांपल करेंगे, उससे हमारा कांसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, twice A plus 3B. This is a reversible reaction and it gives me 2 times C. This is twice A plus B gives me 3 times C. तो इसके लिए आपको लिखना है Kc। कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C raised to power its stoichiometry, that's raised to power 3 divided by concentration of reactant, that's concentration of A into concentration of B raised to power their stoichiometry. इसकी stoichiometry 2 है, इसकी stoichiometry 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। This is how you have to write equilibrium constant. हाँ, आसान है। अभी मैं बात नहीं करता हूँ सॉलिड्स और लिक्विड्स की, भी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, isn't it? तो उससे पहले वो चीज डिस्कशन करने से पहले आप देखो जो Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आप लिखने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहां से क्वेश्चन बनता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है? नंबर फर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है? नंबर फर्स्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, it does not depend upon initial concentration of reactants. Initial concentration of reactants, it does not depend upon initial concentration of reactants. So number second, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It does not depend upon presence of catalyst. It does not depend upon presence of catalyst. It's independent upon presence of catalyst. Number third,
द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, मतलब चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से होगा चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा. द डायरेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, it does not depend upon direction from which the equilibrium has been attained, from which equilibrium has been attained. From which equilibrium has been attained. Number 4, the important point, it does not depend upon the presence of inert material. अगर आपके reaction vessel में inert material होगा, what do you mean by inert material? जो मतलब हमारी reactant या product से, जो हमारे reactant से react नहीं करेगा. It does not depend upon, does not depend upon presence of inert material. Presence of inert material. Inert material is that we do not react with the reactant. Inert material. Inert substance पे depend नहीं करें. Clear? ये 4 बातें बहुत ही important है. यहाँ से question आ सकता है. Value of equilibrium constant. Equilibrium constant depends upon. Clear हुई ये 4 बातें. Equilibrium constant does not depend upon these quantities. It does not depend upon initial concentration of reactant, presence of catalyst, direction from which equilibrium has been attained. It does not depend upon the presence of inert material. बताओ मुझे ये 4 बातें क्लियर हुई? ये 4 बातें आपको याद रखती है. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन. तो किस चीज पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है? नाउ लेट अस सी, अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इजंट इट? तो लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन फैक्टर्स. तो पहला लिखो यहाँ पे, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आए. मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. Mode of representation of reaction. How you are going to represent a reaction? Mode of representation of reaction. इस पे equilibrium constant depend करता है. Mode of representation of reaction, इस पे equilibrium constant depend करता है. Basically जो भी आज के previous year questions होंगे वो इसी पे depend होंगे, वो इसी के related होंगे. Mode of representation of reaction. The equilibrium constant first depends upon mode of representation of reaction. Now let us understand this concept. What do we mean by mode of representation of reaction, isn't it? Now let us consider this factor. What is meant by mode of representation of reaction? Clear? For example, तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस करेंगे. आई होप ये सबने नोट किया होगा. I hope ये सबने नोट किया होगा. Equilibrium constant depends upon mode of representation of reaction. तो देखते हैं कौन कौन से मोड्स हैं रिप्रेजेंटेशन के जिन पे equilibrium constant डिपेंड करता है. So number first one is मेरे पास कोई रिएक्शन है. I have a reaction A plus B gives C plus D. ये मेरे पास रिएक्शन है. अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, Kc लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स कंसंट्रेशन ऑफ C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B raised to power their stoichiometry. यहाँ पे stoichiometry 1 है, 1 शो नहीं करनी होती है, मतलब it is assumed that 1 है यहाँ, isn't it? ना अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, now I am going to reverse this reaction. इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा मतलब C और D को रिएक्टेंट बनाऊंगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट A एंड B आएगा. अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, Kc, दैट इट इज Kc डैश. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, Kc से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको Kc डैश लिखूंगा, isn't it? तो इसको मैं Kc डैश लिखूंगा. तो Kc डैश किसके बराबर होगा? Concentration of products, that's concentration of A into concentration of B divided by concentration of C into concentration of D, isn't it?
So अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही देखना है। व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही देखना है। मतलब ये जो Kc डैश है ये क्या है, तो अगर आप इसको देखोगे, ये जो Kc डैश है इट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय Kc, इट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय Kc। चलो चेक करते हैं। दैट्स 1 डिवाइड बाय Kc का वैल्यू यहाँ पे लिखो। Kc इज द कंसेंट्रेशन ऑफ C, यहाँ से Kc का वैल्यू इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। बस इसको उल्टा करो, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, इसको उल्टा करेंगे सो इट विल बिकम कंसेंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ D। बताओ मुझे ये क्या है, ये Kc डैश। तो दैट्स व्हाई अगर किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो न्यू रिएक्शन होगी जिसको रिवर्स किया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? ये पहला हमारे पास फेक्ट आता है, ये पहला हमारे पास फेक्ट आता है। इसी के रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives me ammonia, is a reversible reaction, it gives me ammonia। अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा this will be 3 types। Kc for this reaction is, it is given that Kc for this reaction is 49, then what will be the Kc for this reaction? Ammonia dissociates to give nitrogen plus 3 times hydrogen। आपको निकालना है इस रिएक्शन का Kc, मतलब Kc डैश निकालना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मैंने इस रिएक्शन को क्या किया, रिवर्स किया। अगर रिवर्स किया दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Kc, 1 अपॉन Kc मतलब 1 अपॉन 49, isn't it? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपको ये वाला फैक्ट, दिस इज फैक्ट नंबर 1, ये आपको सबको समझ में आ गया, isn't it? अगर आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स, रिवर्सिबल रिएक्शन को, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट बिकम्स इनवर्स, isn't it? The equilibrium constant is actually the reciprocal of that reaction which you reverse। यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं, if a reaction, if a reversible reaction, if a reversible reaction is reversed, if a reversible reaction is reversed, the equilibrium constant, the equilibrium constant becomes reciprocal of its origin, becomes reciprocal of its origin। क्लियर? तो कहीं पे इसको नोट डाउन करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this is one mode of representation। Now let us move to the next mode of representation। पहले इसको नोट डाउन करो, इस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को नोट डाउन करो। बेसिकली इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में और ली चैटियर प्रिंसिपल से आते हैं। इसको नोट डाउन करो, वंस यू आर डन विद इट लेट मी नो। हाँ, इसको नोट डाउन करो। हो गया? This was mode of representation नंबर सेकंड। आप देखो, ये आपने नोट डाउन किया? जल्दी से बोलो, ये आपने नोट डाउन किया? Number second is stoichiometric representation of a chemical equation। Stoichiometric representation of a chemical equation। Are you done with it? हाँ, वेरी गुड। नंबर सेकंड देखो, दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट जिसमें हमने लिखा द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नंबर सेकंड देखो, स्टैकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। नंबर सेकंड आप लिखो, स्टैकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। स्टैकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, stoichiometric representation of a chemical
स्टैटिस्टिकल इक्वेशन, मतलब अगर हमारी स्टैक्योमेट्री भी चेंज होगी तो इसमें पार्ट नंबर ए लिखो। When a reversible reaction can be written with the help of two or more stoichiometric equations. Let us first take the example so that आपको समझ में आएगा। मतलब मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आया, this type of equation NO2, it dissociates to give me N2 plus twice O2। याद है ना, जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आएगा तो N2 गैस रिलीज होगा, मतलब यहाँ पे 2 होगा, isn't it? तो इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, NO2 it dissociates to give me 1/2 of N2 plus O2। This is other way of representation, isn't it? This is other way of it। मतलब अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को मोर देन वन वे से लिख सकते हो, दिस इज वन वे, दिस इज अदर वे, प्रोडक्ट एक ही है बट हमने इसको रिप्रेजेंट किया बाय टू और मोर देन टू वे, isn't it? The value of equilibrium constant will be different in this case. The equilibrium constant will be different in this case compared to the equilibrium constant of this case. So let us see how these are related. Let us see how these are related. Let इसका जो equilibrium constant है that is Kc, और इसका जो equilibrium constant है that is Kc dash। तो कैसे रिलेट होते हैं इस चीज को हमें देखना है, isn't it? तो उसके बाद जनरल इक्वेशन बनाएंगे। तो बताओ मुझे, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, Kc will be equal to concentration of products, that's N2, into concentration of oxygen raised to power 2 because इसकी स्टैकियोमेट्री 2 है, divided by concentration of NO2 raised to power 2 because इसकी स्टैकियोमेट्री 2 है। तो इसके लिए अगर Kc हम डैश लिखेंगे, व्हाट विल बी Kc डैश? concentration of concentration of N2 raised to power half into concentration of oxygen divided by concentration of NO2, isn't it? तो मतलब इस इक्वेशन से आप ये वाली इक्वेशन कैसे बनाओगे, बस वही फेंकता है, वो आपको देखना है। इस इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन कैसे बनानी है, बताओ मुझे। इस इक्वेशन से आप ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो मुझे लगता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, isn't it? You have to multiply this equation by 2। अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 times NO2, isn't it? उसके बाद 2 into 2 will cancel out, gives me N2 plus O2। मतलब ये जो Kc डैश होगा, ये जो Kc होगा, this will be Kc dash into 2, isn't it? This will be Kc dash into 2। यहाँ पे जो Kc होगा that will be equal to Kc dash को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, Kc dash into 2। या अगर मैं Kc डैश को निकालूंगा, व्हाट विल बी इट इक्वल टू, इसके बराबर होगा Kc डैश। यहाँ पे अगर आप Kc डैश को भी निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू Kc बाय 2। हाँ, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, ये 2 टाइम्स ऑक्सीजन बनेगा। हाँ, 2 टाइम्स ऑक्सीजन बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो देखो मतलब क्या है कहने का, अगर आपके पास दो केमिकल रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल यू है रिएक्शन, यू हैव इक्वेशन A plus B gives C plus D, gives C plus D। अगर आप इसी इक्वेशन को किसी और तरीके से बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय n टाइम्स, n टाइम्स A प्लस n टाइम्स B gives me n टाइम्स C प्लस n टाइम्स D। जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट इट इज Kc, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका दैट इज Kc, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश। जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज Kc डैश, यहाँ पे दिस इज Kc डैश। तो मैंने इसको रिवर्स में किया, इसको आपको हाफ करना था यहाँ पे। अब जनरल इक्वेशन देखो, जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश बनेगा, जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc रेज़्ड टू पावर n, n मतलब जिस चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इसका रेज़्ड टू पावर n। मतलब इस इक्वेशन को भी आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई Kc रेज़्ड टू पावर n। दिस इज क्लियर इन इट्स वर्ड्स, ये ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे दूसरे तरीके से इक्वेशन को किया। दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखना। अगर आपके पास किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है और किसी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश है, तो अगर आपको उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे बाय n, then the equilibrium constant Kc dash becomes equal to Kc raised to power n। This is very very important। आगे देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, कैसे, isn't it?
क्लियर हुआ? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो के सी डैश है, इन दिस केस के सी डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के सी। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। सी के सी इज इक्वल टू के सी डैश रेज टू पावर n, दैट्स रेज टू पावर 2. So kc dash will be equal to root of kc, isn't it? So but this is the general formula, this is general formula, this is point number second. तो स्टैकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। इसमें हमने ए पार्ट डिस्कस किया, पार्ट नंबर बी डिस्कस करो। ए पार्ट डिस्कस किया, पार्ट नंबर बी ले लो इसका। आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, रूट को रिप्लेस करके 1/2 से कीजिए। अच्छा यार, हाँ, एक ही बात है ना, आप रूट को रिप्लेस भी कर सकते हो, 1/2 भी कर सकते हो, इसको 1/2 से डिवाइड करो, तब भी आपको, अगर आप इसको इस रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। एक ही बात है, बट दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है। नाउ पार्ट नंबर सेकंड, स्टैकियोमेट्री में पार्ट नंबर बी। तो राइट डाउन पार्ट नंबर बी। When an equation having equilibrium constant Kc, when an equation having equilibrium constant Kc, this is equilibrium constant, having equilibrium constant Kc, equilibrium constant Kc is written in 2 or more steps, is written in 2 or more steps, is written in 2 or more steps. अगर कोई रिएक्शन आपके पास है और वी कैन राइट इट इन 2 और मोर स्टेप्स, इक्वेशन है कोई, वी कैन राइट इट इन 2 और मोर स्टेप्स, और इन स्टेप्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एग्जांपल k1 k2 k3 होगा। देन जो हमारा kc होगा, देन एट दैट टाइम kc विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस k1 into k2 into k3 डैश। सो दिस इज थर्ड जनरलाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So let us take an example, इसको एक्सप्लेन करने के लिए we'll take an example. For example, मेरे पास रिएक्शन है N2 plus O2 plus Cl2. All these are gaseous in nature. These are in gas phase. It gives me twice NOCl. It gives me twice NOCl. This is also gaseous. This is gaseous. This is gaseous. अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ gas और solids, isn't it? इसके लिए अगर मैं Kc लिखूंगा, what will be Kc equal to? Kc will be equal to product of concentration of product NOCl raised to power 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2 into concentration of Cl2, isn't it? Isn't it? तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, I can split this equation into 2 or more steps. Now splitting this equation, इसको split करो, splitting this equation, we can split this equation, basically आपके एग्जाम में split करके होगा, तो आपको बस आइडिया लगाना है। N2 plus O2 gives twice NO, gives twice NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, पता कैसे लिखोगे? K1 will be equal to NO raised to power 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2. तो एक और स्प्लिटिंग करेंगे, ट्वाइस NO, अब ये ट्वाइस NO कंबाइन होके क्लोरीन से कंबाइन होके it will form NOCl. This is a reversible reaction, this is also reversible reaction. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एग्जांपल K2, तो K2 को कैसे लिखोगे? हाउ कैन यू राइट K2? दिस इज ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। NOCl raised to power 2 divided by concentration of NO into concentration of Cl2. अब देखो, अगर आप K1 और K2 को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। मल्टीप्लाई करेंगे, विल सी व्हाट विल हैपन। K1 को K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग K1 into K2, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास K1 है, इसको K2 मल्टीप्लाई करूंगा। आपने इसको नोट डाउन किया, तब मैं यहीं पे, चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, NO होल स्क्वायर divided by N2 into concentration of O2
इनटू इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स कंसंट्रेशन ऑफ NaCl raised to power 2 divided by concentration of NO into concentration, this should be concentration of NO raised to power 2 into concentration of Cl2। अब देखो जो भी टर्म्स ऊपर और नीचे सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, so what will this be equal? This will be equal to NaCl raised to power 2 divided by concentration of N2 into concentration of O2 into concentration of Cl2। बताइए किसके बराबर है? This is equal to Kc। So this is the fact, इसको हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। बताओ मुझे ये बात समझ में आ गई? तो बस आपको एग्जाम में देखना है क्या ये रिएक्शन स्प्लिट हुई है into 2 or 4 parts, then you have to write Kc is equal to K1 into K2 into Kc। क्लियर? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? Kc is equal to K1 into K2 into K3। क्लियर हुई ये बात? तो बस आपको एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है, यही कुछ आपको देखना है। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको यही बातें देखनी है। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, करो इसको नोट डाउन जल्दी से। तो हमने एक्चुअली 3 फैक्टर्स देखे। अगर किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय n तो Kc डैश विल बी इक्वल टू Kc रेज़ टू पावर n। हाँ, तो Kc डैश विल बी इक्वल टू Kc रेज़ टू पावर n। तो किसी इक्वेशन को अगर रिवर्स करेंगे Kc डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Kc। किसी इक्वेशन को अगर स्प्लिट करके लिखेंगे Kc विल बी इक्वल टू K1 into K2 into K3। इजंट इट? 3 बातें बस आपको याद रखनी है, सिर्फ 3 बातें। 3 बातें यहाँ पे याद रखनी है, मैं इनको रिवाइज करूंगा। अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, अगर किसी रिएक्शन को, अगर किसी केमिकल इक्वेशन को, अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करते हो तो जो हमारा न्यू Kc डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Kc। अगर आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो देन जो Kc डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू Kc रेज़ टू पावर n। n मतलब बाय हाउ मेनी फैक्टर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। अगर आप किसी रिएक्शन को स्प्लिट करते हो देन जो हमारे पास Kc होगा दैट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। बस ये 3 बातें याद रखनी, और कुछ नहीं आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? इस फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दीस फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दीस फैक्टर्स। बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर हुआ? तब जाके हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। वी विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। इस कांसेप्ट पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए। पहले कंफर्म करो आपको ये बात सब समझ में आ गई। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। लास्ट स्लाइड देख लेना। अच्छा देखो लास्ट स्लाइड, देखो लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। तो बस आप जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको देखना है या मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है या क्या हुआ है, बस यही देखना है। यूजुअली मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो लेट अस सी सर्टेन क्वेश्चंस। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड विल सी हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। इस कांसेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2017, इन नीट 2007 एंड नीट 2003। मतलब 3 बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2017 के बाद इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर इन 2022। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। देखो मेरे पास 3 इक्वेशंस दी गई है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। हमें बताना है इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। इस इक्वेशन के लिए बेसिकली मतलब ऊपर 3 इक्वेशंस को हमें रीअरेंज करना है और हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है। जो ऊपर 3 इक्वेशंस दिए गए हैं उनको रीअरेंज करना है और हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, उससे हमारा आंसर आएगा। Isn't it?
तो देखो कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। ये जो है ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब ये रिएक्शन फाइनल है। इस रिएक्शन में अमोनिया ऑन द रिएक्टेंट साइड है। बता मुझे यहाँ पे अमोनिया किस साइड है, प्रोडक्ट साइड। मतलब इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना है। करो इस रिएक्शन को रिवर्स। 2 टाइम्स अमोनिया गिव्स मी N2 प्लस 3 टाइम्स H2। लाइक थर्मोडायनामिक्स में जैसे हम रिवर्स करते हैं वैसे देखो, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम निकालना है। इस रिएक्शन में हमारा अमोनिया ऑन द रिएक्टेंट साइड है, लेकिन अगर इन रिएक्शंस को देखेंगे तो अमोनिया इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो इसको हमें रिएक्टेंट साइड लाना है, मतलब इस चीज को रिवर्स करना है। तो जो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय K1, बिकॉज़ आपने रिवर्स किया, इजंट इट? हाँ, 1 डिवाइड बाय K1, वेरी गुड। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, N2 इसको ऐसे ही रहने देंगे, N2 प्लस O2 गिव्स मी ट्वाइस NO। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, मतलब हमारा K2 भी आ गया, K1 भी आ गया। थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन देखो, मैंने इस इक्वेशन को क्यों ऐसे ही रखा, बिकॉज NO प्रोडक्ट में है, NO प्रोडक्ट में है, काम खत्म। तो यहाँ पे वाटर प्रोडक्ट में है, वाटर प्रोडक्ट में है, देखो H2 प्लस 1/2 ऑफ O2 गिव्स मी वाटर। तो देखो बट यहाँ पे वाटर आपका 3 टाइम्स है, इजंट इट? मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इजंट इट? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 था, तो व्हाट विल इट विल बिकम इक्वल टू, इट विल बिकम इक्वल टू K3 रेज़ टू पावर 3। क्लियर, इजंट इट? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज यहाँ पे वाटर 3 टाइम्स है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, दिस विल बिकम इक्वल टू 5/2 टाइम्स, दिस विल बिकम इक्वल टू, इजंट इट? यहाँ पे 3/2 बनेगा प्लस 1 मोर ऑक्सीजन, 3/2 यहाँ पे मिलेगा, 3/2 ऑक्सीजन, ऊपर एक ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन, मतलब प्लस 1, 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5/2 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ना? 3 टाइम्स हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स हाइड्रोजन, इस 3 टाइम्स हाइड्रोजन से कैंसिल होके इन 3 रिएक्शंस को आप बैलेंस करो, हमारा आंसर आएगा। अब देखो 3 टाइम्स, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। तो देखो इस रिएक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, हमारे पास N2 है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो आपको बनाना जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट गिव्स मी ट्वाइस NO, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो आपके लिए एक और रिएक्शन है, 1/2 ऑफ नाइट्रोजन, मतलब रिवर्स नहीं करना है, प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिवर्स नहीं करना है, बिकॉज दे आर ऑन द रिएक्टेंट साइड, गिव्स मी, इट गिव्स मी NO, इजंट इट? इट गिव्स मी NO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश है। आपको बताना है ये K डैश किसके बराबर है। तो देखो इस रिएक्शन को क्या करेंगे सो दैट ये रिएक्शन आएगी, इस रिएक्शन को क्या करेंगे सो दैट ये रिएक्शन आएगी। बताओ मुझे, इस रिएक्शन को क्या करेंगे, इसको हाफ से मल्टीपल डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कट हो जाएगा, मतलब हमारा हाफ N2 बन जाएगा, यहाँ पे हाफ O2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाएगा, NO बनेगा, इजंट इट? मतलब ये जो K है इसको हमने हाफ किया मतलब इसको हमने रूट किया, AC रेज़ टू, जितनी जितने से मल्टीप्लाई करोगे वो रेज़ टू पावर बनता है। मतलब K को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, K को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी द आंसर। जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पे रेज़ टू पावर बनेगा। 2015 में क्वेश्चन आया था, बता सबको समझ में आ गया? बता सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना वो फैक्टर रेज़ टू पावर बन जाता है। हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, दैट्स व्हाई हाफ बिकम्स, इट बिकम्स रेज़ टू पावर हाफ। क्लियर? लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन है बीन आस्क्ड इन मेंस 2012 में आया है, मेंस में आया है, 2012 में आया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता, मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इजंट इट? तो क्या है हमारे पास ये वाली इक्वेशन, हमारे पास ये वाली इक्वेशन, बता कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 टाइम्स SO3, ये इक्वेशन है ना हमारे पास? हाँ,
तो इस इक्वेशन से हमें बनानी है ये इक्वेशन। इसके लिए वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसका वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज 298। दिस इज द इक्विलिब्रियम 278। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। तो बट हमें किसके लिए निकालना है? इस रिएक्शन के लिए। तो देखो इस रिएक्शन में SO3 रिएक्टेंट साइड में, मतलब इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब पहले हमें 1/278 बनेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो करो इस रिएक्शन को रिवर्स। रिवर्स करेंगे सो इट विल बिकम 2 times SO3। इट गिव्स मी 2 times सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इजंट इट? तो बट बेसिकली मेरे पास ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज 1/278। वाई 1/278? बिकॉज मैंने इसको रिवर्स किया। अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन है जिसके लिए निकालना है। SO3 gives me SO2 प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन। बता मुझे ये इक्वेशन कैसे बनेगी इस इक्वेशन से? अगर हम इस इक्वेशन को हाफ करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये इक्वेशन बनानी है इस इक्वेशन से, अगर हम इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम SO3, दिस विल बिकम SO2 एंड दिस विल बिकम हाफ टाइम। मतलब इसका हाफ करना मतलब क्या है? इसका स्क्वायर रूट करना, इजंट इट? सो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होगा, Kc डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 278 इसका स्क्वायर रूट, इजंट इट? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। बस यहाँ पे आपको खुद ही करना है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 3.6 नहीं निकलेगा, 3.6 आंसर नहीं आएगा इसका, या 3.6 स्पेशल नहीं आएगा। 3.6 डी भी नहीं आए। डी किसने बोला? अरे यार इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 278 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1/278 दिस ऑलमोस्ट दिस विल कम आउट टू बी, आप इसको सॉल्व करना, दिस विल कम आउट टू बी 6 into 10 raised power minus 2। दिस विल कम आउट टू बी 6 into 10 raised power minus 2। तो बिकॉज ऑफ दिस, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, यू नो दिस फ्रॉम मैथमेटिक्स, इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये मैथ में आया है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है, इजंट इट? बी नहीं आएगा, बी कहाँ आएगा? 3.6 नहीं आएगा। 1 divided by 278, this will be 10 tens are 100, 16 point something. This will be 1 divided by 16 point something, 16 point, let us say 16.5 आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे 16.5, 16 1 divided by 16, 16/6 minus it will come out to be nearest to 6। तो मैंने कैसे किया इसको? मैंने किया एक्चुअली 16 6 are 256, 17 ज्यादा हो रहा है, 256 मतलब 16 पॉइंट समथिंग होगा। 16 को 1 को 16 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 100। 16 6 are 16/6 96, therefore it will come about near about 6। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है, रफ कैलकुलेशन मैंने की। किसको मेरी कैलकुलेशन समझ में आ गई? मैंने ऐसे किया, दिस इज 1 divided by 276। थोड़ा सोचो कैसे कैलकुलेशन एग्जाम में करनी है। तो 276 मतलब क्या है? अगर मैं 16 16 करूंगा दैट इज 256, अगर 17 17 करूंगा वो ज्यादा होगा, मतलब 16 और 17 के बीच में, मतलब मैंने लिया अप्रोक्सीमेटली 16.5। अब 1 को 16 से डिवाइड करेंगे मतलब दिस विल बिकम 100, दैट इज 0.00 something। 16 6s are 69, isn't it? That means it will come out to be 6 into 10 raised to the power minus 2। देखा कैसे कैलकुलेशन करते हैं? पता मुझे ये कैलकुलेशन किसको समझ में आई जो मैंने यहाँ पे की? रफ कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे की किसको समझ में आया? रफ कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं किसको समझ में आ गई? अगर यहाँ पे 3 लेंगे देन इट इज 16 3 are। हाँ वेरी गुड। रफ कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन जब लगाते हैं तब रफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, isn't it? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बता मुझे ये क्वेश्चन, जल्दी से बोलो यार। हाँ वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजंट इट? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। गिवन दैट, गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस,
these are two gases. A2 gas and B2 gas give us twice AB. This is the reaction. At equilibrium, the concentration of A is given, concentration of B is given, and concentration of AB is given. This is concentration of A, this is concentration of B, and this is concentration of AB. बस आपको क्या निकालना है, ये सील्ड वेसल में है मतलब क्लोज्ड वेसल में है. क्लोज्ड वेसल बोले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. अगर ओपन वेसल होता तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है. तो हमें इस रिएक्शन के लिए केसी निकालना है. बताओ मुझे केसी कैसे निकालेंगे, इसका हम केसी लिखेंगे. Kc will be equal to product of concentration of products, मतलब AB raised to power 2, concentration of AB into concentration of A2 into concentration of B2. बस वैल्यूज दिए गए हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं. AB का वैल्यू है 2.8 into 10 raised to power -3, isn't it? और यहाँ पे A का वैल्यू जो है that is 3.0 into 10 raised to power -3 और B का वैल्यू जो है that is 4.2 into 10 raised to power -3. बस इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, आएगा ना सॉल्व करना. तो यहाँ से आप इसको अप्रोक्सीमेशन करते हो 4 1000 4 7000, isn't it? 4 1000 4 7000 आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो 4 1000 4 7000, isn't it? इसका आंसर निकालो. हाँ वेरी गुड, किसने आंसर निकाला? वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस. इसका आंसर दिस हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2012 में आया है. बस कैलकुलेशन इसमें फैक्टर है, दैट्स व्हाई मेंस में आया है. 10 raised power -3 10 raised power -3 it will go. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4 1000, दिस विल बी यहाँ पे 0 आएगा 70 डिवाइडेड बाय 3 into 10 raised power -3 को ऊपर लेगा, दिस विल बी 10 raised power +3, isn't it? 3 2s are 6. अरे यार क्या हुआ, गलती हुई कहीं पे. इसको पूरा सॉल्व करो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी. इसको पूरा सॉल्व आप खुद से करो, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 0.62. क्या आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो? अच्छा यहाँ पे एक कम करते हैं, यहाँ पे एक कम करते हैं, तो इसको लिखते हैं 2.8, isn't it? इसका स्क्वायर लेना है. हाँ दैट्स व्हाई गलती हो गई, इसका स्क्वायर लेना है, यहाँ पे स्क्वायर है. दैट इज 2.8 into 2.8 डिवाइडेड बाय 3.0 into 4.2. बताओ मुझे ये 10 raised power 2 कहाँ गया? 10 raised power 2 से एक 10 raised power 3 से एक 10 raised power 3 खत्म हो गया. दूसरे 10 raised power 3 से ये वाला दूसरा 10 raised power 3 खत्म हो गया, isn't it? तो बस इसको आप सॉल्व करेंगे, नाउ इट विल बी इजी. तो यहाँ से अब आएगा आपको 0.62. मैं यहाँ पे भूल गया था स्क्वायर लाना, isn't it? अब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, बहुत इजी वे से आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. तो करो अप्रोक्सीमेशन. पॉइंट एंड पॉइंट विल कैंसिल, 4 1000 4 7000. पॉइंट एंड पॉइंट, दिस विल बी 7, दिस विल बी 3 7000, almost 3 7000 3 9027. now 9 6063 मतलब almost 0.62, isn't it? So this is how you can easily calculate. So let us take one more question. बताओ मुझे ये क्वेश्चन कौन करेगा? फर्दर रिएक्शन, ये मेरे पास रिएक्शन, this reaction is given, this reaction has been asked in मेंस 2011. बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में आए हैं, that's why नीट में रिपीट हो रहे हैं. तो मेंस के क्वेश्चन बेसिकली नीट में रिपीट होते हैं. हाँ करो इस क्वेश्चन को पहले आप मुझे बता करके दे दो. ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, दिस इज एन इक्वेशन. इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट्स K1. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. अच्छा इस रिएक्शन के लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इज, यहाँ पे K2 होना चाहिए, यहाँ पे इसके लिए K2 होना चाहिए. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा K2 लिखा है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, K2 है. इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. तो इस रिएक्शन के लिए आपको K निकालना है. बताओ मुझे K किसके बराबर होगा? बस देखना है, पहली वाली रिएक्शन को लिखो N2 प्लस O2. अच्छा रुको, देखो ये जो रिएक्शन है जिसका निकालना है, इसमें NO2 लेफ्ट साइड है, इसमें NO2 राइट साइड है, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करो.
पहली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, दिस विल बी NO ट्वाइस गिव्स मी N2 प्लस O2। तो पहले यही देखना होता है कि रिवर्स मत करना पड़ेगा। तो बता मुझे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, K1। तो अगर मैंने रिवर्स किया व्हाट विल बी, नाउ इट विल बी 1 डिवाइड बाय K1। तो रिएक्शन सेकंड जो है इसमें NO ऑन द रिएक्टेंट साइड है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। इसमें O2 NO2 ऑन द राइट साइड है। NO2 के कहाँ होना चाहिए, NO2 लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो यार मैंने किसी पे कर NO2 ऑन द राइट साइड होना चाहिए, isn't it? मैंने इससे कंपेयर किया, isn't it? तो मुझे यहाँ पे ना इसे कंपेयर करना। Let me write them once again. N2 plus O2 gives me twice N। This is equation number first। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। मेरे पास एक और इक्वेशन है, twice NO plus oxygen gives me twice NO2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब निकालना किसके लिए, निकालना इस इक्वेशन के लिए। NO2 मतलब ये रिएक्टेंट में होना चाहिए, दिस शुड बी इन द रिएक्टेंट, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, isn't it? NO2 gives me 1/2 of N2 प्लस O2। बस देखो N2 और O2 इसको मुझे लाना है प्रोडक्ट साइड, मतलब इस रिएक्शन को भी रिवर्स करना है, करो इस रिएक्शन को रिवर्स। ट्वाइस NO gives me N2 प्लस O2, रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 डिवाइड बाय K1। NO2 को मुझे लाना है रिएक्टेंट साइड में, मतलब इसको भी मुझे रिवर्स करना है। NO2 ट्वाइस gives me twice NO प्लस O2, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया 1 डिवाइड बाय K2। अब निकालना किसके लिए, निकालना इसके लिए। इसके लिए NO2 gives me half of N2 प्लस O2। बताओ मुझे ये हाफ ऑफ N2 कैसे मिलेगा, बताओ मुझे। देखो ये ट्वाइस NO और ट्वाइस NO कैंसिल हो जाएगा, isn't it? मतलब NO2 मिल रहा है, इट गिव्स मी 1/2 ऑफ N2। अब मेरे पास ये इक्वेशन हो रही है, मतलब इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, isn't it? दिस इक्वेशन you have to divide this equation by 2। why you have to divide, because आपके पास NO2 आएगा, उसके बाद आपका यहाँ NO रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका 1/2 ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, मतलब इसको भी डिवाइड करना है बाय हाफ। डिवाइड दोनों को करना है, मतलब दिस विल बिकम इक्वल टू, ये इक्वेशन इन दो इक्वेशन से आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू K1 into K2। बट दोनों का रेसिप्रोकल लिया, देयरफॉर 1 डिवाइड बाय K1 into K2। लेकिन दोनों का हमने क्या किया, दोनों को हमने डिवाइड बाय हाफ किया, देयरफॉर इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय K1 into K2, मतलब इसका 1/2 से मल्टीप्लाई किया दोनों। तो ये हमारे पास आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, isn't it? हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब भी किया, बिकॉज मुझे दोनों इक्वेशन को रिवर्स करना। क्लियर हुआ, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी। You can say it is 1 divided by root of K1 into K2। This is equal to 1 divided by root of K1 into K2, isn't it? तो बस बहुत इजी है, जिस चीज से मल्टीप्लाई करो उसको यहाँ ले जाओ। पहले रिवर्स किया तो 1 डिवाइड बाई K1, उसके बाद रिवर्स किया 1 डिवाइड बाई K2। इन दोनों इक्वेशन से ये आता है, इसलिए K1 into K2। प्रीवियस स्लाइड फिर से देख, ये वाली, अच्छा ये हमने किया ही नहीं, ये वाली देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, और here we have square because AB raised to power 2 था। बता मुझे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे क्या क्वेश्चन आएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे क्या आपको क्वेश्चन आएंगे, बता मुझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे क्या आपको क्वेश्चन आएंगे। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी स्टार्टिंग है। So what will be the question answer of this question? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। हाँ बताओ जल्दी से,
तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज Kc दैट्स इक्वल टू 8.0। बस काम खत्म, इसके लिए दिया गया है, इसके लिए निकालना है। बस क्या करना है, देखो यहाँ पे HI रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में लाना है, मतलब यहाँ पे इसका हमें रिवर्स करना है। इस इक्वेशन को करो, इस इक्वेशन को रिवर्स, दैट इज 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ I2 gives me twice, gives me HI, isn't it? इसको रिवर्स किया तो जो हमारा Kc था दैट बिकम्स 1/8, isn't it? तो उसके बाद हमें निकालना है इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या है, H2 प्लस I2 gives me twice HI। तो इसके लिए निकालना है, मतलब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका K डैश है, तो ये कैसे बनेगी, अगर आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, ये इक्वेशन बनेगी, बताओ मुझे क्या करोगे, इस इक्वेशन को ये बनेगी, what you are going to do to this equation so that आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, isn't it? इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, so that ये इक्वेशन बनेगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी H2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी I2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी ट्वाइस HI। मतलब इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 2, मल्टीप्लाई मीन्स रेज़ टू पावर बाय 2, रेज़ टू पावर बाय 2 मीन्स दिस विल बी 8 8 64, so 1/64 इज द आंसर। क्या है 1/64 को, हाँ 1/64 जिस किसी ने भी दिया, हाँ जिस किसी ने भी दिया उसका आंसर क्लियर है। मुझे लगता है एक ही बच्चे ने दिया, 16 नहीं आएगा, 64 आएगा। देखो ये दिया गया है ना, इसी को हमें करना है, क्या करेंगे, सो दैट ये इक्वेशन आएगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, isn't it? हाँ डी आएगा, वेरी गुड। आई होप नाउ कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2008। नाउ आई होप कि इसके रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, isn't it? You can now solve the questions. हाँ वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो हम कल डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली Kc क्या होता है, Kp क्या होता है, इनके बीच में कौन सी रिलेशन होती है। एक्चुअली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ लाइक बाय Kc, और वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय